السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشہ خدمت ہے ایک اسلامک سچی اسٹوری۔ آپ لوگ اسے ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کریے گا، پورا دیکھیے گا پلیز۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میں ایک ڈاکٹر تھا، پر میری شادی ایک چٹی گوار لڑکی سے ہوئی تھی۔ مجھے اس سے چڑ ہوتی۔ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتی اور میں شہر میں نے شہر آ کر ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا جب ماں باپ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ مجبوراً میں اپنی جاہل بیوی کو شہر لے کر آیا اور اسے سختی سے کہا کہ اگر کسی کو بتایا میری بیوی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یوں وہ ماسی بن کر میری دوسری بیوی کی خدمت کرتی۔ ایک دن میں بیمار پڑ گیا تو میری پہلی بیوی رات میں اپنے کمرے میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ پہلے یہ آواز دور سے سنائی دے رہی تھی، مگر جب وہ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تو محسوس ہوا کہ یہ آواز تو میرے بہت قریب سے آ رہی ہے۔ آواز زنانہ تھی، اس لیے میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کمرے میں روشنی کر دی تو میرا روم میٹ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے وقاص، لائٹ کیوں آن کر دی؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور بولا، تم فون پر کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے نا؟ اس نے تعجب بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرا موبائل تو ڈیڈ ہو گیا ہے، وہ دیکھ چارجنگ پر لگا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، کچھ نہیں یار، خواب دیکھا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے۔ میں نے کمرے میں پھر سے اندھیرا کر دیا تھا، مگر میں حیران تھا کہ یہ کیسی آواز تھی۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں ایک گاؤں میں رہتا تھا، مگر اعلیٰ تعلیم کی خاطر شہر میں آن بسا تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں نے جی لگا کر اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ اب میرے ڈاکٹر بننے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ صبح ہوئی تو پھر سے وہی بھاگم بھاگ لگ چکی تھی۔ آدھا دن یونیورسٹی میں گزر چکا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ گرمی کی شدت نے میری مت مار دی تھی۔ میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے پھر سے لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا تھا اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، سامان بھی مختصر تھا، اس لیے پورا کمرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا یہاں۔ ابھی ذیشان بھی واپس نہیں لوٹا تھا، نہیں تو میں سمجھتا کہ وہ اپنی دوست سے بات کر رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر باتھ روم چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا۔ ہنسی کی آواز بھی اب تھم چکی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو سکرین پر ابو کالنگ جگمگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ابو کی پریشان سی آواز میرے کانوں میں ابھری تھی۔ وہ کہنے لگے، وقاص تم کہاں ہو؟ میں بولا، ابو میں یونیورسٹی سے واپس آ کر اب کمرے میں بیٹھا ہوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابو کہنے لگے، نہیں خیر نہیں ہے، تم جلدی سے گاؤں واپس آ جاؤ۔ ابو کی بات سن کر تو میرے ہاتھوں پیروں سے دم ہی نکل گیا تھا۔ میں بولا، کیوں ابو، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ابو کہنے لگے کہ بیٹا، والدین اولاد مانگتے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے۔ تم جانتے ہو نا کہ تم تو میری واحد اولاد ہو۔ کل رات سے تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں تنہا اسے کبھی کسی ہسپتال میں لے کر جا رہا ہوں تو کبھی کسی ہسپتال میں، مگر اس کی صحت کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہو رہی۔ تم جلدی سے واپس آؤ تاکہ ہم دونوں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ ابو کی بات سن کر تو میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، ابو زیادہ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ ابو کہنے لگے، نہیں نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نہیں لے کر جا سکتا تمہاری والدہ کو ہسپتالوں میں۔ میں بولا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں شام تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے بس اسٹیشن کال کی تھی اور اپنے لیے ایک ٹکٹ بک کروا لی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے جلدی ہی ٹکٹ مل گئی تھی۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور ذیشان کو بھی ایک میسج کر دیا تھا کہ میں گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ سارا راستہ بڑی پریشانی میں کٹا تھا کہ نہ جانے اب میری امی کو کیا ہو گیا ہے۔ دل ہی دل میں ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتا رہا تھا۔
शाम में घर पहुंचा तो अम्मी को निढाल सा बिस्तर पर पाया। मैं उनके गले लगा तो अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं बोला, अम्मी क्या हो गया है, क्यों तबीयत खराब कर ली है आपने अपनी? तो अम्मी कहने लगी कि मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा ख्वाब नहीं देखा था, दिल बड़ा परेशान हुआ तो तबीयत खराब हो गई। मैं अम्मी की बात सुनकर चौंक गया था। कहीं अम्मी के ख्वाब का ताल्लुक मेरे कमरे में गूंजने वाली हंसी से तो नहीं था। खैर, मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरा सदका दे देती, परेशान होने की क्या बात थी, आप मुझसे फोन पर बात कर लेती। खैर, मैंने अम्मी का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया तो वो काफी हाई था। मैंने उनको टैबलेट दी और उनको आराम करने के लिए कहा। मैंने चेक कर लिया था कि उनकी हालत अब अस्पताल लेकर जाने वाली नहीं थी। वो पिछले डॉक्टर्स की दवाइयां खाकर अब बेहतर हो चुकी थी। अम्मी ने मुझे देखा तो भी उनको सुकून मिल गया था। अब मैं अब्बू के साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा था। सुबह हुई तो मैंने अम्मी से कहा कि आपकी तबीयत अब ठीक है तो मुझे इजाजत दें कि मैं वापस चला जाऊं। तब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और अपने सर पर रखकर कहा, तुम्हें कसम है मेरी, इस बार तुम शादी करके ही वापस जाना। अगर तुम शादी किए बगैर जाओगे तो अगली दफा जब तुम वापस लौटोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मुझे अम्मी से इस किस्म की बात की तवक्का नहीं थी। मैं बोला, अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है कि मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता हूँ और प्लीज मेरे कुछ ही माह रह गए हैं, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसे में अभी आप मुझ पर शादी की जिम्मेदारी मत डालें। अम्मी ने कह दिया कि मैं तुमसे अपनी बात कह चुकी हूँ, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी प्यारी है तो फिर तुम्हें शादी करना ही होगी। शादी का तो अभी 5-6 साल तक मेरी जिंदगी में कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे उस वक्त खुद पर बड़ी हैरत हुई जब मैंने अम्मी के एक बार कहने पर ही हथियार डाल दिए थे। अम्मी ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैंने ऊपर ऊपर से इनकार किया, मगर मेरा दिल तो अंदर से बिल्कुल राजी हो चुका था, जैसे मैं सदियों से शादी के लिए तैयार ही बैठा हुआ था। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे अचानक से हो क्या गया है। मैंने कहा, अम्मी आप मेरी शादी किससे करवाना चाहती हैं? तो वो कहने लगी, मैं अपनी बहन की बेटी नबीला से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मैं एकदम चौंक गया था। मैं बोला, अम्मी वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने तो शायद 5 क्लासें भी नहीं पढ़ी, और फिर वो मेरी बीवी कैसे बन सकती है? आपको तो पता है कि मुझे शुरू से ही तालीम याफ्ता लोग अच्छे लगते हैं। अम्मी कहने लगी कि डिग्री को तुमने क्या करना है, लड़की तो अच्छी है ना, मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था कि मैं एक कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ, मगर न जाने मैंने हामी क्यों भर ली और अम्मी से कहा, ठीक है जैसा आपको मुनासिब लगता है वैसे करें, मगर मैं ये शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं करना चाहता। ये फंक्शन जिस कदर जल्दी निपटा सके उतना ही बेहतर है। अम्मी तो इतनी खुश हो गई कि वो उठकर नाचने लगी थी और फिर मेरे माथे पर बोसा देने लगी और कहने लगी कि आज तुमने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया है, अल्लाह तुम्हें भी दुनिया जहान की खुशियां अता करे। मैं मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गया था। अब मुझे खुद पर ताज्जुब हो रहा था और मैंने खुद को कोसा भी कि वकास तुम ये क्या करने जा रहे हो। मैंने सोचा कि अभी उठकर अम्मी को इनकार कर दूं कि मैंने पहले जज्बात में आकर शादी के लिए हामी भर दी थी, मगर मैं ये शादी नहीं करना चाहता। और रही बात नबीला से, तो वो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है मेरी शादी करने की तो कोई और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ ले, क्योंकि नबीला मुझे कभी भी पसंद नहीं रही। मैं ये सब कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका था। मैं यही सब बातें सोचता सोचता सो गया था, मगर थोड़ी ही देर बाद मेरी आंख अम्मी की आवाज से खुली थी। वो कहने लगी, मुबारक हो वकास, मेरी बहन मान गई है, उसने अपनी नबीला का रिश्ता तुम्हारे लिए दे दिया है। अब कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आ जाएगी। मैं चुपचाप बैठा रहा था, तब अम्मी मेरे पास बैठ गईं और कहने लगी, वकास खुशी का मौका है, तुम इस तरह की शक्ल बनाओगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तुम पर जबरदस्ती कर रही हूँ। तुम खुशी मनाओ कि तुम्हारी जिंदगी का एक नया बाब खुलने वाला है। मैं अम्मी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया था और कहा, अम्मी आपने करना तो वही है जो आपने सोचा हुआ है, फिर आपको मेरी खुशी या ना खुशी से क्या फर्क पड़ता है? अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं वकास, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर घर में शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी थी। मेरे कहने के मुताबिक सब कुछ सादगी से ही किया गया था।
एक दो फंक्शंस में ही शादी निपट गई थी। हम बारात लेकर वापस आ चुके थे और अब मेरी दुल्हन मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी, जबकि मैं छत पर खड़ा सोच रहा था कि क्या मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए या नहीं। एक ऐसी लड़की जिसके साथ ना तो मेरी जहनी हम आंगी है और ना ही वो तालीम याफ्ता है, मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा। सब कुछ सोचते सोचते काफी देर बीत गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब जब शादी कर ही ली है तो मुझे अपने कमरे में भी चले जाना चाहिए। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी अभी तक घूंघट गिराकर बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठा और घूंघट पलट दिया था। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गया कि नबीला बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। मैं बोला, नबीला कैसी हो? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक हूँ। वो मुझसे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, उसका सर झुकता ही जा रहा था। मुझे उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी थी। मैंने नबीला को देखा तो ऐसा लगा कि ये वो लड़की है ही नहीं जिससे मैं इतनी नफरत करता था। ये तो कोई बहुत ही प्यारी भोली भाली सी लड़की है। मैंने नबीला को मुंह दिखाई का तोहफा दिया और उससे गुफ्तगू करने लगा था। मुझे नबीला अच्छी लगी थी। खैर, सुबह हुई तो अम्मी कमरे में आई और कहने लगी कि मेरी बहू तुम्हें कैसी लगी? तो मैं मुस्कुरा दिया और बोला कि आपकी बहू अच्छी है। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली हुई है, इसलिए मैंने ये पूरे 7 दिन अपनी बीवी के साथ ही बिताए थे। मुझे तो ये सोचकर हैरत होती थी कि मैं नबीला जैसी लड़की के साथ इस कदर खुश और मुतमईन कैसे हो सकता हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे नबीला ने मुझे मुकम्मल कर दिया है, उसके साथ ने मेरी जिंदगी को रंगीन बना दिया है। मैं उसके साथ अपने दिल की बातें करता था, वो मेरी बातें समझ भी लेती थी। हाँ, हम दोनों में तालीम का फर्क था, लेकिन वो मेरी जहनियत को समझ पा रही थी। मगर जब मैं कोई इंग्लिश का लफ्ज बोलता तो वो अटक जाती थी, तो फिर मैं उसे मतलब बता देता। वो मुझसे कहती कि अब तो मुझे भी आपकी खातिर इंग्लिश सीखना पड़ेगी, तो मैं कह देता कि इंग्लिश में माहिर होना किसी की भी जहानत जांचने का मयार नहीं है। तुम मेरे लिए ऐसे ही ठीक हो, मुझे तुम ऐसे ही कबूल हो। छुट्टी मुकम्मल हो गई तो मुझे अब वापस जाना था। मैंने अम्मी से इजाजत ली तो वो कहने लगी कि अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ, वो तुम्हारे बगैर नाराज होगी। तो मैं बोला, अम्मी ये शादी मैंने आप लोगों के लिए की है, मेरी बीवी आपके पास रहेगी तो आपका दिल लगा रहेगा। मैं कमरे में गया तो नबीला बेड पर बैठी रो रही थी। मैं हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि मैंने सुन लिया है आप वापस जा रहे हैं, आपकी वापसी के डर से मैं रो रही हूँ। मेरा तो दिल अभी से बैठा जा रहा है, मैं तो आपके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। जाना जरूरी है तो मुझे भी लेकर चलें। मैं बोला, नबीला मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं शहर में एक लड़के के साथ फ्लैट शेयर करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर हफ्ते की छुट्टी तुम्हारे पास गुजारने आया करूंगा। तुम कुछ महीने इस तरह गुजार लो, फिर मैं शहर में अपना घर ले लूंगा और तुम्हें और अपने वालिदैन को साथ ले जाऊंगा। नबीला बड़ी मुश्किल से मानी थी। खैर, मैं वापस जाने लगा तो मेरा भी दिल नाराज हो रहा था कि मैं अपनी इतनी प्यारी और कम उम्र बीवी को कैसे छोड़कर जाऊं। मैं बस में जाकर बैठा तो नबीला के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मुझे नबीला पर बड़ा प्यार आ रहा था। पूरा रास्ता मैं नबीला की चुलबुली बातों को याद करके महजूज होता रहा था और आखिरकार मेरा सफर खत्म हुआ। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया था। मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। जब सोकर उठा तो देखा कि अम्मी की कॉल मेरे मोबाइल पर कई दफा आई हुई थी। मैंने कॉल पिक की तो अम्मी कहने लगी कि बेटा, तुमने तो शहर पहुंचकर अपनी खैर खैरियत भी ना दी और अपनी बीवी से बात कर लो। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली हैं, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। नबीला का जिक्र सुनकर अचानक से मेरे दिल को कुछ हुआ था। बेजारियत मेरे पूरे वजूद पर छा गई थी। अम्मी ने नबीला को कॉल दे दी तो वो सिसकियों के दौरान कहने लगी कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आप जल्दी से वापस आ जाएं। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे कैफियत हुई थी। मैं बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब तुम रोना धोना बंद करो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं सोचकर परेशान हो रहा था कि मैंने अम्मी की बात क्यों मान ली। मेरा और नबीला का तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे नबीला से चिड़ सी होने लगी थी। मेरा दोस्त
ज़ीशान कमरे में आया तो मुझे देखकर बड़ा खुश हो गया था। कहने लगा, हाँ यार बताओ मेरी मिठाई कहाँ है। मैं अपनी शादी के मुत्तल्लिक ज़ीशान को फोन पर भी बता चुका था। मैंने नफी में सर हिलाया और बोला कि नहीं यार, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, मैं कोई मिठाई लेकर नहीं आया। तो ज़ीशान हंस दिया, कहने लगा, ये अच्छा बहाना है, मैंने फोन पर देखा था कि तुम बहुत खुश थे, तुम अपनी बीवी की भी बहुत तारीफें कर रहे थे। अब जैसे ही शहर की हवा तुम्हें लगी है, तुम ये कहने लगे हो कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। ये कैसा मजाक है। मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर झुंझला गया था। अब मैं हर वक्त परेशान रहता था। मैं अपनी शादी से नाखुश था। मैं खुद को और उस वक्त को कोसता था जब मैं इस शादी के लिए रजामंद हुआ था। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में बैठा था कि दो लड़कियां मेरे करीब से गुजरने लगी, मगर फिर वो रुक गई थी। एक लड़की दूसरी लड़की से कहने लगी कि देखो, इस इंसान के चेहरे पर दुख और परेशानी लिखी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे इससे कोई बहुत बड़ी गलती सरजर्द हो गई है और ये उसको मिटाना चाहता है, मगर ऐसा नामुमकिन लगता है। मैं ये सब देखकर हैरान हुआ और बोला, ये सब क्या तमाशा हो रहा है। मेरा चेहरा पढ़ने की इजाजत तुम लोगों को किसने दी है। मुझे लगा था कि वो लड़कियां डरकर भाग जाएंगी, मगर पहले वाली लड़की अब भी वैसे ही बड़े गौर से मुझे देख रही थी और साथ ही साथ अपनी दोस्त से बातें भी कर रही थी। वो कहने लगी, देखा, अब ये बंदा हम पर गुस्सा करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर की बेचैनी को पकड़ लिया है। मुझे उसकी बातें कुछ दिलचस्प लगने लगी थी। मैं बोला, ये सब क्या हो रहा है। तो वो लड़की कहने लगी कि मैं साइकेट्रिस्ट बनने वाली हूँ और मैं लोगों के चेहरे पढ़कर उनके अंदर का हाल जान लेती हूँ, मगर मेरी दोस्त सना को मेरी काबिलियत पर शक था, इसलिए मैं आज उसे पूरी यूनिवर्सिटी के चेहरे पढ़ पढ़ कर सुना रही हूँ। आप बताएं, आपके साथ वही मसला है ना जो मैंने बताया है। मैंने उस बात में सर हिला दिया था और बोला, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताओ कि इस मसले से कैसे निकला जा सकता है। तो लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा नाम नायाब है। अगर आप मुझे कैंटीन पर साथ ले जाएं और एक कप चाय पिला देंगे तो मैं आपका मसला हल कर दूंगी। मैंने नायाब से कहा कि हाँ, तुम चलो मेरे साथ। मैं और वो लड़की कैंटीन में बैठकर बातें करने लगे थे। वो लड़की बहुत ही अच्छी बातें करती थी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश ये लड़की मेरी शरीके हयात बन जाती। मैंने कहा, नबीला जैसी गवार लड़की के साथ शादी कर ली है। चाय खत्म हो गई तो नायाब उठने लगी। मैं बोला, मुझे अक्सर परेशानी लाक रहती है। अगर मुझे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगी तो आपसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा। वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। नायाब ने मुझे अपना नंबर दे दिया था। मैंने घर पहुंचते ही उसे कॉल की थी। उसने भी मेरी कॉल फौरन ही अटेंड कर ली। अब मैं उससे हर रोज बातें करने लगा था। वो भी मुझसे बातें करती थी। एक दिन कहने लगी कि मैं किसी के साथ इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ। आप दुनिया के वाहिद शख्स हैं जिसके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है। मैं मुस्कुरा दिया और बोला कि मुझे भी तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ही शामिल कर लूं। तो आगे से नायाब कहने लगी, रोका किसने है। ये बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गया था। यानी ये सब इतनी आसानी से हो गया कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने नायाब से कहा कि मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। तो नायाब कहने लगी, मुझे कौन सा ढोल बाजे चाहिए। मैंने उससे कहा, कोर्ट में जाकर निकाह कर लेंगे। तो उसने कहा, 4 दोस्तों को तो बुला लेते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और फिर यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ जाकर मैंने नायाब के साथ निकाह कर लिया था। अब मैं परेशान था कि नायाब को कहाँ रखूं। तो नायाब कहने लगी कि मेरे वालिद ने फोत होने से पहले मुझे एक फ्लैट गिफ्ट किया था, हम दोनों वहीं पर रह लेंगे। मैं नायाब को रुखसत करके उसी के फ्लैट में लेकर गया था। नायाब के वालिद फोत हो चुके थे जबकि उसकी अम्मी मुल्क से बाहर रहती थी और नायाब यहाँ पर अपने फ्लैट में तन्हा रहती थी। नायाब से शादी करके मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं हर वक्त खुश रहने लगा था। परेशानियां तो जैसे मुझसे दूर हो गई थी। नायाब जब हंसती तो मैं उसकी हंसी में खो सा जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये हंसी तो मेरी जानी पहचानी सी है। खैर, अम्मी की कॉल बार बार आती थी। वो रोती धोती रहती थी। वो कहती थी कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं है तो ना सही एक बार अपनी बीवी को ही मिल जाओ। अम्मी इस कदर गमगीन थी कि मैं खुद को गाँव जाने से ना रोक पाया था।
میں نے نایاب سے کہا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میری امی میرے لیے پریشان ہیں۔ تو نایاب کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ چند دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ نایاب بڑی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں گاؤں چلا گیا۔ اب میں نے 2 دن اپنی والدہ کے ساتھ بتائے تھے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ مجھ سے ناراض ہے، وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسی کو عافیت جانا تھا اور میں نے بھی اس کو منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے 2 دن بالکل اجنبیوں کی طرح گزارے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ رات بھر روتی رہتی، سسکتی رہتی ہے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار کر واپس شہر آ گیا تھا۔ نایاب بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا اب ہر وقت ایسا ہی ہوا کرے گا کہ تم مجھے چھٹی والے دن چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلے جایا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں، ظاہری سی بات ہے، ہفتے کے باقی 6 دن تمہارے ساتھ گزار لیتا ہوں، 1-2 دن اپنی والدہ کے ساتھ گزار لوں گا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر یوں ہوا کہ اگلا اتوار آنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ میری والدہ اور والد اچانک سے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ میں جلدی سے گاؤں پہنچا تھا۔ ان کی میتوں کو دیکھ کر مجھے ان کی موت کا یقین آیا تھا۔ نبیلہ سسک کر رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دونوں رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر یہ صدمہ پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی تدفین کروائی اور اپنے پچھلے 10 دنوں سے گاؤں میں ہی موجود تھا۔ میرا شہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے امی کی شکل گھومتی رہتی تھی۔ وہ میرے وجود کی خاطر ترستی تھی اور اب میں ان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ چند دن گزرے تو نبیلہ نے مجھے خط دیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی والدہ نے لکھ کر میرے پاس محفوظ کروایا تھا۔ میں نے وہ خط دیکھا تو اس میں امی نے لکھا تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد میں نبیلہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، مگر میں امی کی وصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نبیلہ کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ شہر چلو۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر میں نے اس سے کہا کہ شہر جا کر یہ ہرگز مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ ملازمہ بن کر رہنا، کیونکہ میں وہاں شادی کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ میری بات سن کر نبیلہ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے تھے کہ وہ جیسے ابھی دکھ سے مر جائے گی۔ میرا دل اس کے لیے ناراض بھی ہوا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نبیلہ نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا تھا اور میرے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ میری بیوی نے جب نبیلہ کو دیکھا تو وہ غصے سے بولی، یہ کون ہے اور اسے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میرے والدین کے گھر کی ملازمہ ہے، یہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کے انتقال کے بعد اس کو یہاں لے آیا ہوں، یہ تمہاری ہیلپ کر دیا کرے گی۔ نایاب خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی سارا سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، جبکہ نایاب میرے ساتھ ہنستی بولتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر نبیلہ آہیں بھرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں معذور ہو گیا۔ نایاب تو میری حالت دیکھ کر پاگل ہی ہو گئی تھی، جبکہ نبیلہ بھی چپ چپ کر روتی رہتی تھی۔ اب میں سارا سارا دن بستر پر پڑا رہتا تھا۔ نایاب اور نبیلہ دونوں ہی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک رات اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو یہ وہی ہنسی تھی جو مجھے میرے ہاسٹل میں سنائی دیتی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ یہ آواز تو نایاب کی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نبیلہ کھڑی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وقاص، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فقط آپ کی بیوی نایاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے آپ پر کالا جادو کیا ہے۔ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں۔ ابھی وہ یہ سب باتیں مجھے بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نایاب اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے جب نبیلہ کو میرے ساتھ دیکھا تو وہ غصے سے آگے بڑھی اور نبیلہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم اس وقت میرے شوہر کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تو نبیلہ چیخ کر بولی کہ میں تمہاری حقیقت بتا رہی ہوں، وقاص کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے تم ہو۔ یہ بات سن کر نایاب رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں، مگر میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑا تھا۔ میں بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ۔
नायाब फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, वकास, आपको याद है जब आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो मैं भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। मुझे आप पहली ही नजर में बहुत अच्छे लगे थे। मैं आपके इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी, लेकिन आपने कभी मुझ पर नजर सानी नहीं की। मैं आपके इश्क में दीवानी हो चली थी और आपको हर सूरत पाना चाहती थी। मैंने 3 साल कोशिश की कि आपकी नजरों में आ जाऊं, मगर ऐसा ना हुआ तो मुझे मजबूरन काले जादू का सहारा लेना पड़ा था। मैं आपकी नजरों में आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर जगह आपको मैं ही नजर आऊं, आप मुझे ही सुनते रहो। बस नायाब की बातें सुनकर पता चला कि ये हंसी की आवाज भी मुझे नायाब के जादू की वजह से ही आती थी। खैर, नायाब बोली, मैंने आप पर काला जादू किया था कि आपके अंदर शादी करने की चाह पैदा हो जाए, क्योंकि मैं प्लान कर चुकी थी कि आपकी जिंदगी में आऊंगी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि आप गांव गए हैं और आपकी वालदा ने आपकी शादी जबरदस्ती अपनी बहन की बेटी से करवा दी है। मुझे लगता है इस शादी के लिए आपने हामी भी इसलिए भर दी थी क्योंकि मेरा जादू उस वक्त आप पर काम कर रहा था। लेकिन जब मुझे ये खबर पहुंची तो मैं टूट कर रह गई थी, इसलिए मैंने जादू की नौयत बदल दी थी। अब मैं आपके सामने आई तो उस जादू के असर के तहत आपको मैं अच्छी लगने लगी थी। फिर हमने शादी कर ली, लेकिन आपकी अम्मी तो पीछे ही नहीं हटती थी। वो बहाने बहाने से आपको गांव में बुलाती रहती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी बीवी अच्छी लगने लगे, इसलिए मैंने ऐसा जादू करवाया कि आपके वालिदैन दोनों ही मर गए। लेकिन हद तो तब हुई जब आप अपनी बीवी को साथ ही ले आए, मगर इस बात की खुशी भी थी कि आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था और आपने उसे घर की मासी बना दिया था। मगर मैं ये सब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने जादू करवाया कि ये लड़की हमारी जिंदगी से निकल जाए। न जाने जादू उल्टा क्यों पड़ गया और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप माजूर हो गए। वकास, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, दीवानगी की हद तक आपको चाहती हूँ। आप जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ये सब बातें सुनकर मेरा दिमाग तो फटने वाला हो गया था। मैं बोला, मुझसे मेरी हर खुशी छीनने के पीछे नायाब तुम्हारा हाथ था। उसने मुझ पर काला जादू किया था और अब वो मुझे कह रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे नायाब से खौफ आने लगा था। मैं उससे दूर दूर रहने लगा था, जबकि वो मेरे लिए तरसती रहती थी। अब मैंने नायाब का फ्लैट छोड़ने का इरादा कर लिया था। मैंने नबीला से कहा कि अपना सामान पैक करो, हम वापस गांव जाएंगे। लेकिन जब ये बात नायाब ने सुनी तो वो गुस्से से पागल ही हो गई थी। वो घर की चीजें उठा उठा कर मारने लगी थी। उसने नबीला को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब मैंने नायाब को तलाक दे दी थी और मैं वापस गांव आ गया था। मुझे मालूम है कि नायाब मुझे खो देने के बाद अब ज्यादा जुनूनी हो गई है। वो मेरे ऊपर मजीद काले जादू करने लगी है। लेकिन शुक्र है कि मेरी बीवी एक नमाजी परहेजी औरत है। वो घर में रोजाना सूरत बकरा की तिलावत करती है। वो सारा दिन मुझ पर पढ़ पढ़ कर फूकती रहती है। हमने काले जादू से बचने के लिए तावीज भी लिए हुए हैं। अल्लाह के नाम की बरकत से अब मेरी टांगे तो ठीक हो गई हैं, लेकिन अक्सर मुझे नायाब की शक्ल दिखाई देती है और मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो चीज उसके नसीब में है वो उसको हर हाल में मिलकर रहेगी, लेकिन जो चीज उसके मुकद्दर में नहीं है, अगर वो किसी से छीन भी ले तो वो भी उसके जबड़ों में से निकल जाती है। इसलिए जो आपके पास है हमेशा उसमें राजी रहे। गलत तरीके से छीनी गई चीजें और रिश्ते कभी भी फायदेमंद नहीं होते।